محمد ریاض احمد صاحب کے تعلق سے میں ایک بات کہوں گا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنا مضمون لکھا ریاست میں تو اپنا نام نہیں لکھا، لیکن تحریک سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریک کہتی کہ میں ریاض احمد ہوں، میں ریاض احمد ہوں، میں ریاض احمد ہوں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے ریاض احمد ہوں. تو پرسوں جو کہ گاڑیاں بھی اچھا تھا بڑا اچھا آرٹیکل ہے، صحافی کی حیثیت سے تعریف کر رہا ہوں میں، یہ کسی ادھر ادھر کی گفتگو یہاں لے جا رہا ہوں. آرٹیکل صحافی کی حیثیت، صحافیوں کی لکھی ہے، صحافی کی حیثیت سے جو آرٹیکل انہوں نے لکھا ہے یہ بڑا دل کو لگنے والی بات ہے، بڑی پیاری بات ہے. ایک کی اور ایک کا پیار محبت کے تمام فارمولوں کو اس مضمون میں مربوط کر کے رکھ دیا گیا تھا بس قابل تعریف. اور میں ہمارے انگریزی اور اردو کے ایک شاہ ممتاز ترین سینئر موسٹ جرنلسٹ جناب عادل رئیس صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ٹیلیویژن پر آئے. میں ہمارے روبی ٹی وی کے آصف علی صاحب کی تشریف فرما ہے اور جناب امجد صاحب سے میں گزارش کروں گا روبی ٹی وی کے ممتاز نوجوان صحافی اور نوجوان ٹی وی اینکر سے میں گزارش کروں گا کہ وہ شہر شریف یہاں پر تشریف لائیں اور نظامت کے فرائض انجام دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین محفل، آج ہم جمع ہوئے ہیں عالی جناب ایم اے ماجد صاحب جو بہت ہی سینئر صحافی ہیں، پرنٹ میڈیا سے کافی دیرینہ تعلق ہے، نہ صرف پرنٹ میڈیا بلکہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی کافی مشہور و معروف ہیں. ان کا پروگرام 4 ٹی وی پر ہمارے اخبار کے نام سے آتا ہے جو کہ اخباروں کی خبروں کا تجزیہ ہوتا ہے. تجزیہ نگاری میں یہ بڑے ماہر ہیں ماشاءاللہ. تو ان کی یہ دیرینہ خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت تلنگانہ نے حال ہی میں انہیں پروقار ایوارڈ سے نوازا ہے. ایوارڈ کو پانے کے خوشی میں جناب حسن اصغر صاحب نے یہ محفل کا انعقاد عمل میں لایا ہے، جس کے تحت جناب ایم اے ماجد صاحب کو تہنیت پیش کی جائے گی. میں جناب ابراہیم صاحب سے رہنما کے ابراہیم صاحب سے گزارش کروں گا، عیسیٰ بن ابراہیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. جناب عیسیٰ بن ابراہیم صاحب. صحافیوں کے درمیان اسٹیج پہ ٹھہر کر کچھ الفاظ کا تبادلہ یا اپنی نظریات کا اظہار کرنے میں لیکن احساس یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ہے کہ ماجد صاحب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کو اپنے آپ میں خود بھی ہے میں ایک اعزاز ہی سمجھتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ
यहाँ तक कहते की तकलीफ का सवाल है, माजी साहब की सहाफ़ती खिदमत को पेश नज़र रखते हुए तेलंगाना हुकूमत ने बेहतरीन सहाफ़ी के एजाज़ से नवाजा, जो न सिर्फ उनकी शख्सी एतबार से बल्कि हम सब सहाफ़ियों के लिए एक एजाज़ से कम है। वैसे भी राइस पर जितनी भी शख्सियात हैं उसमें से एक से वाला एक सहाफ़ी है जिनके खाते में काफ़ी बड़े बड़े एजाज़ात हैं। खासकर हमारे लिए सबसे मोहतरम और सबसे काबिल तारीफ शख्सियत जो है, जो मिसाली है हमारे लिए, खासकर नौजवानों के लिए, वो है एम माजिद साहब, जिनकी सहाफ़त की खिदमत कई एतबार से कई महकमात में इजाज़त के साथ नवाजा गया। हर मौके पर माजिद साहब ने बिला वाबस्तगी अपने नज़रियात को और आवाम के आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाने में कोई इम्कान जद्दोजहद की है। सिर्फ आवाम की आवाज़ को नहीं बल्कि सहाफ़ियों की आवाज़ को भी यूनियन लीडर की हैसियत से हुकूमत तक पहुँचाया है। अगर सिर्फ सहाफ़त के एतबार से माजिद साहब को देखा जाए तो उनके साथ इंतहाई नाइंसाफ़ी होगी। न सिर्फ माजिद साहब किसी अखबार से वाबस्ता है बल्कि सहाफ़ियों के जज्बात से भी वाबस्ता रहे हैं। कई मामला में माजिद साहब ने सहाफ़ियों को उनका हक दिलाया। अगर हुकूमत किसी नज़रिए से उनको कोई अवार्ड देती है तो ये उनका शख्सी मामला हो सकता है, लेकिन वो अवार्ड हमारे लिए डायरेक्ट एक एजाज़ आप लोगों के सामने बस इतना मामूली तकलीफ से नज़रिया का इज़हार कर सका। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहूँगा ये एक पहली मरतबा है कि मैं आपके सामने कुछ अल्फाज़ कभी माजिद साहब की तारीफ में कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब ईसा बिन इब्राहिम साहब रहनुमा के हवाले से कहते हैं, अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत प्यारी बात कही। एम माजिद साहब न सिर्फ सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं बल्कि सहाफ़ियों के जज्बात से जो है मुंसलिक है और सहाफ़ियों के मसाइल को हल करने में पेश रहते हैं। अब मैं मदद करूँगा आली जनाब मोहम्मद आसिफ अली साहब, न्यूज़ हेड रूबी चैनल को, कि वो तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब मोहम्मद आसिफ अली साहब। पर तशरीफ फरमा मौजूद मेहमान, जर्नलिस्ट साहिबान और मेरे साथियों, आज की इस महफिल को सजाने का मकसद यही है कि ऐसे जर्नलिस्ट को तहरीर पेश की जाए जिन्हें हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आला एजाज़ से नवाजा गया है। और ये वजूदा तमाम सहाफ़ियों के लिए एजाज़ है कि माजिद साहब जैसी शख्सियत को जो है हुकूमत तेलंगाना ने रिकगनाइज़ किया और उन्हें आला से आला अवार्ड अता किया। मैं मशकूर हूँ जनाब हसन अस्कर साहब का, जो दाई महफिल हैं और उन्होंने तमाम सहाफ़ियों को इर्जा करने की एक कोशिश की है, सही की है, और तमाम मौजूदा अफराद को उन्होंने मदद किया था, लेकिन वक्त की मुनासिबत की वजह से कुछ लोग यहाँ पर आ नहीं सके। लेकिन काबिल मुबारकबाद है हसन अस्कर, जिन्होंने ये कोशिश की है कि माजिद साहब को जो है तहनीत पेश की जाए। हम तमाम सहाफ़ी उनके साथ हैं। जहाँ तक माजिद साहब की खिदमत का एक लंबा सफ़र है कि मैं समझता हूँ कम वक्त में उसको बयान करना बिल्कुल ही मुश्किल कुन मरहला है। ताहम तमाम सहाफ़ी जानते हैं आपकी सहाफ़त खिदमत किसी से हकीक हुई नहीं है। यूनियन से लेकर आपने हैदराबाद के मारूफ रोजनामों में जो खिदमत अंजाम दी हैं वो जो है सबके सामने है। मैं तहरीर से हमें माजिद साहब को मुबारकबाद देता हूँ उन्हें अवार्ड अता होने पर और इस महफिल के इनेकाद पर दाई महफिल हसन अस्कर साहब का मशकूर हूँ। बाहैसियत ऑल इंडिया उर्दू बात सोसाइटी और पुलिस के सदर की हैसियत से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। डैश पे जितनी बड़ी शख्सियत में तशरीफ फरमा है, हाँ वो आसिफ अली साहब हो, रियाज साहब हो या हाजी रहीम साहब हो, एम
माजिद साहब हो, ताहिर रुमानी साहब हो, मुनकर साहब हो, एम माजिद साहब हो, मेरे दरमियान में ताहिर रुमानी साहब और खासकर एम माजिद साहब, इन्हें एक तवील अरसे से जो है समझने का, देखने का, पाने का मौका। मैं ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड रहे, ऑफ द रिकॉर्ड उर्दू सहाफत पे जुड़ा हुआ 1978 से कह सकते हैं। ऑन द रिकॉर्ड तो मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, ऑन द रिकॉर्ड बैंकर हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड आप मुझे सहाफ़ी कह सकते हैं, इसलिए कि उर्दू सहाफत पे ही हमारी PhD हो। बहरहाल आज जो नई नस्ल जो दिख रही है, ये सब माजिद साहब और ताहिर रुमानी साहब, उन तमाम बड़ी शख्सियतों का ही कारनामा है कि जो अपनी जात में एक मुकम्मल है। अगर मैं आसिफ साहब की मिसाल दूँ तो आज यूट्यूब चैनल हो या हो TV हो, इसके जरिए न जाने हर दुनिया के कोने कोने तक अपनी बातों को जो है हैदराबाद की नुमाइंदगी भरपूर की। ये अल्लाह का बड़ा फजल है, करम है कि NCPU की जानिब से 200 साल जश्न जब मनाया गया तो हैदराबाद की नुमाइंदगी करने के लिए मुझे कोई इंतखाब किया का मुझे नहीं मालूम, लेकिन 200 साल जश्न के लिए मैंने उर्दू जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, मैं मुकर्रिरीन हज़रात से अदबन गुज़ारिश करता हूँ कि अपनी तकारीर को थोड़ा इख्तिसार से पेश करें, ताकि क्योंकि थोड़ा वक्त का तकाज़ा भी है। और अब मैं दावत देना चाहूँगा आली जनाब हाजी रहीम साहब, जो कि अंग्रेजी और उर्दू के सीनियर सहाफ़ी हैं, जनाब हाजी रहीम साहब। जनाब हाजी रहीम साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आज की महफिल के मरकज़ी तवज्जो जनाब एम माजिद साहब, दूसरे अहम सहाफ़ी हज़रात जो इस वक्त स्टेज पर मौजूद है, और बहुत सारे जो इस वक्त सामिलीन में हैं, मैं उन सबका खैर मक़दम हूँ। ये महफिल जैसा कि आप जानते हैं जनाब हसन अस्कर साहब ने मुनक़्क़िद की है प्रेस एडिटर्स की जानिब से, और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जनाब हसन अस्कर साहब, जहाँ पर सहाफ़ियों का सवाल है, उनकी हिम्मत अफजाई का सवाल है, उनको तहनीत पेश करने का सवाल है, मैं समझता हूँ इसमें हम तमाम में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, सबसे आगे। वो सालाना उर्दू सहाफ़ियों में एक सरताज सहाफ़त का अवार्ड भी देते हैं, और उसके साथ ही साथ इस किस्म के जलसे मुनक़्क़िद करने में भी हमेशा पेश रहते हैं। और आज का जलसा जो मुनक़्क़िद किया गया है एम माजिद साहब को तहनीत पेश करने के लिए, और इस सिलसिले में कि हुकूमत तेलंगाना ने उन्हें एक अहम तरीन अवार्ड से नवाजा। जहाँ तक एम माजिद साहब की शख्सियत का सवाल है, आप तमाम हजरात ने अपने ख्यालात का इजहार किया, और मैं समझता हूँ कि अगर मैं भी करूँ तो भी एम माजिद साहब की शख्सियत का पूरा अहाता नहीं कर सकूँगा, इसलिए कि एम माजिद साहब बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं। हैदराबाद में उर्दू की सियाहत के सिलसिले में उन्हें नुमाइंदा तस्लीम किया जा सकता है। उनकी शख्सियत जहाँ तक सियाहत के मैदान का सवाल है, हमजहत है, मल्टी फेसेटेड है। वो डेस्क पर बैठकर प्रिंट मीडिया में अखबार भी लिखते हैं, साथ ही साथ टीवी पर अखबारों के अलावा तफसीर भी पेश करते हैं। इसके साथ ही वो मज़ामीन लिखते हैं, और इन तमाम चीज़ों से हटकर जहाँ तक सहाफ़ी अंजुमनों का सवाल है उससे भी वाबस्ता है। तो
صحافیوں کی جو جدوجہد حیدرآباد میں رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی ایک بہت ہی پرانی اور طویل تاریخ ہے، اور اس تاریخ سے بھی جناب یم ماجد صاحب جڑے ہوئے ہیں۔ نشین پہ دعوت دوں گا۔ ڈاکٹر انیف انصاری، ڈاکٹر انیف انصاری دہلی سے خصوصی نمائندے تشریف لائے ہیں، وہ مختصر سے انداز میں لوگوں کو خطاب۔ جناب مختار احمد فقیر صاحب سے ہمیشہ رابطے میں رہا، وہ ہمارے دیرینہ دوستوں میں کہیے ہمارے دیرینہ سے تعلقات رہا ہے، اور آج بھی انہی کے کہنے پر میں یہاں آیا۔ یہ سن کر خوشی ہوئی کہ ایک سینئر صحافی جناب ایم ماجد صاحب کو حکومت تلنگانہ کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ان کی طویل خدمات کے طرف دیا گیا ہے۔ اس حسین موقع پر میں انہیں دل کے گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس سے پہلے میں تو واقف نہیں تھا، اور یہ معلوم ہوا کہ آپ اخبار اعتماد کے مدیر اعلیٰ ہیں، تو اور بھی خوشی ہوئی۔ یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس شہر میں اردو زبان غروب پا رہی ہے، اور اس کی بقا کے لیے صحافی حضرات، اہل قلم حضرات تین دگنی رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں، اور ایک اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ میں ایک بار پھر دیکھیے صحافی حضرات کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور وہ جب کچھ اخبار میں لکھتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے لکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ذرا سی زبان کی لرزش سے رسومات کرتے ہیں، اس لیے ان کی بڑی ذمہ داری ہے، اور ان کی طویل خدمات کو دیکھتے ہوئے حکومت تلنگانہ نے انہیں جو ایوارڈ سے نوازا ہے، یہ ان کے صحیح معنوں میں مستحق ہیں۔ میں ان کے بارے میں اس سے پہلے کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اور میں کلکتہ جا رہا ہوں، ان کی یاد کلکتہ لے کے جاؤں گا، اور میں صاحب حسن اصغر صاحب، عبد الرحیم صاحب، غلام احمد صاحب، آصف علی صاحب، مختار احمد صاحب، میرے راہو منصف کے رفیق، السلام علیکم۔ کیونکہ حسن اصغر صاحب نے قابل کیا ہے، مختصر کیا جائے۔ سب سے پہلے میں جناب ماجد صاحب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جب ماجد صاحب کے نام کا اعلان ہوا اور ماجد صاحب کو جس ایوارڈ سے نوازا گیا، اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ماجد صاحب کو میں مبارکباد کرتا ہوں۔ حالانکہ میں ان سے بہت قریب ہوں، یونین میں بھی، اور میرے دوست بھی ہیں، لیکن آپ سوچیں گے کہ کبھی عرصے کے بعد بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ عید کے بعد ہم مل رہے ہیں، اور دو عید ہیں، آج دو عید شمال کی عید، اور ایسے مبارک موقع پر حسن اصغر صاحب نے جس جرأت کا مظاہرہ کیا وہ میرے مبارکباد۔ میں بھی ذکر بھی کیا حیدرآباد کے اخبارات کا، یہاں میں اس کرنا چاہتا ہوں۔ تقریباً 40 سال سے میں اردو صحافت سے وابستہ ہوں تقریباً، اور میں نے بہت سے نشے کو فراز دیکھے، اور بہت سی شخصیتوں کے ترون خانہ سرگرمیوں سے بھی واقف ہوں۔ میں جہاں تک اردو اخبارات کا ذکر نکلا ہے، میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ بات بی بی سی لندن کے نمائندے
फजाली आबेदी साहब हैदराबाद तशरीफ लाए। उर्दू घर में फंक्शन था, उनसे मेरी जब मुलाकात हुई तो मुख्तसर से के लिए मैंने उनसे एक ही सवाल किया। वो ये था कि आप क्योंकि बीबीसी से वाबस्ता हैं, बीबीसी दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है, कदीम भी है, अजीम भी है, और उर्दू के सेक्शन के लिए फजाली आबेदी साहब हमेशा है। मैंने उनसे पूछा कि आपके पास तकरीबन पाकिस्तान, ईरान, हर जगह के अखबार आते हैं और भी उर्दू के अखबार आते हैं, आपका तज्जिया क्या है कि हैदराबाद के अखबार और दीगर मुकामात के अखबार का क्या फर्क महसूस करते हैं? उन्होंने जवाब दिया वो आप सब के लिए बहुत ही काबिल फख्र था। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के अखबार मुकम्मल अखबार होते हैं, हैदराबाद का अखबार मुकम्मल अखबार है। इसमें शादी की न्यूज भी मिलेगी, इंतकाल की न्यूज मिलेगी और खेल कूद की खबरें मिलेगी, सियासी सरगर्मियां मिलेगी, मजहबी जलसों की खबरें मिलेगी। ये सब दूसरे अखबार, दूसरे इलाकों के अखबार नहीं। और माजी साहब शायद आपको याद होगा पाकिस्तान से जो साहबी हजरात यहाँ तशरीफ लाए थे, जिसको हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के यहाँ उनको रजिस्ट्रेशन दिया था, उनसे पर भी मैंने बात कही थी। और अब फिर एक बात कहना चाहता हूँ कि हम हैदराबादी गाँव मिला लिहाज मौसम मिलत हम बड़े फख्र से कहते हैं हैदराबादी है और हम उर्दू बोलते हैं। यही बात है कि आप देखेंगे हिंदुस्तान के सारे शहरों में हैदराबाद वो शहर है जहाँ साइन बोर्ड पर उर्दू नजर आता है। इफ्तिखार की बात नहीं कर रहा हूँ, सत्यनारायण जौहरी, पी सत्यनारायण जौहरी, बजरंग प्रसाद जैसे कई इदारे, कई बिजनेसमैन उर्दू में अपने साइन बोर्ड बनाए हुए। ये हम उर्दू वालों के लिए उर्दू का शहर है, उर्दू का शहर है, मामूली बात नहीं है। हमने उर्दू को बड़े जतन से, बड़े सम्मानों से संभाल रखा है। लेकिन ऐसे मौके हुकूमत तेलंगाना की जानिब से माजी साहब को जो इज़ाज़ किया गया और अवार्ड दिया गया, उसके लिए हम सब इसलिए भी मुबारकबाद देना चाहते हैं कि ये अवार्ड माजी साहब के लिए नहीं है, ये अवार्ड हम सब के लिए, हम उर्दू वालों के लिए इज़ाज़ की बात। इस मौके पर मैं माजी साहब के जहाँ तक ये कहने की तकलीफ का सवाल है, मैं माजी साहब को मुबारकबाद नहीं दूँगा। असल मुबारकबाद को नहीं तो हमारे सर सरकार हैं जो इस तरह के जलसे मुनक़िद करने की जरूरत है। आजकल उर्दू वालों के जलसे मुनक़िद करना कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी जरूरत दिल मुड़ने का काम होता है। लोग उर्दू की बातें तो बहुत करते हैं, उर्दू के लिए मारने पर तैयार होने का ऐलान तो करते हैं, लेकिन जब जज्बों की बात आती है या अमली काम की बात आती है तो ऐसे अंजाम हो जाते हैं जैसे उनका उर्दू से ताल्लुक ही नहीं। ये बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन फिर भी हमारे हसन अस्कर साहब जैसे उर्दू के सिपाही बड़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं और इस तरह के जज्बों का इनेकाद अमल में लाते हैं। किसी भी तारीफ की जाए मैं समझता हूँ कि कम है। अब रही अब मुबारकबाद मैं माजी साहब को देना चाहूँगा इसलिए कि माजी साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं चंद अल्फाज के बयान कर देता हूँ। मोहब्बत, मुरब्बत, इंकिसारी, गमगुसारी, ये इन सफात का माजी साहब बेहतरीन नमूना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूनियन में भी हम माजी साहब के साथ रहते हैं कि हमारे साथियों ने, तकनीकी साथियों ने उनकी मुस्कुराहट की बात की है, तो मैं कहता हूँ कि ये माजी साहब की मुस्कुराहट नहीं है, बल्कि वो उर्दू सहाफत की मुस्कुराहट है। माजी साहब अगर देखा जाए तो मेरी नज़र में उर्दू सहाफत का वो खूबसूरत सफा है जिस पर आपको हर किस्म की खबरें जरूर मिलेंगी, चाहे वो सियासी हो, चाहे इक़्तिसादी हो या
कोई मिलत मुतालिक मसाइल की खबर है, उनमें मुनसिफाना अंदाज में आप तज्जियात बयान करते हैं। यही मैं और क्या कह सकता हूँ, यही कह सकता हूँ कि वो मालूमात से भरा हुआ एक सफ़ा है। और जहाँ तक उनके नाम का ताल्लुक है इब्न माजिद, तो कभी कभी आप गौर करके देखें कि इब्न माजिद का तस्वुर करें तो कभी कभी मेरे जहन में कलम का तस्वुर आता है। और ये खूबी और ये खूबी और एक ये है कि आप जहाँ बड़ों की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, छोटों को भी कभी मायूस नहीं करते, बड़ी हौसला अफजाई करते हैं उनकी। और उसकी मिसाल मैं खुद आपके सामने मौजूद हूँ, यूनियन में हो या हमारे सहाफती पेशे में हो, हमारे साथ भरपूर हौसला अफजाई की। जब वो बात करते हैं छोटों से तो ऐसा लगता है कि वो अपने आप से ज़्यादा वो शख्स को अहमियत दे रहे हैं। और जब किसी शख्स में ये खूबियाँ पैदा हो जाती हैं तो वो शख्स अजीब हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि जो अवार्ड हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दिया गया है माजिद साहब के लिए एजाज़ नहीं, बल्कि उस अवार्ड के लिए माजिद साहब को दे दिया। मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला माजिद साहब को हमेशा खुश रखे और उनके कलम में और ताकत दे और लिखने का उन्हें उनके क्या कहते हैं उन्हें कई तहत से नवाजे और उनके खैर ताकत रखे और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन। जो लोग फूल लेकर आए हैं वो खुदकुशी कर सकते हैं। पढ़ने चाहते हैं शेर याद आ रहा है, जहाँ भी रहता है रोशनी देता है, शराब का बहुत बहुत साथ रहमान साहब। साहेबान साहब खुदकुशी कर जो लोग खुदकुशी कर रहे हैं वो जनाब मुख्तार अहमद परवेज साहब खुदकुशी कर रहे हैं। जनाब जनता के ऑर्डिनेटर मोहम्मद खैरात अली साहब हमारे शेख इस्माइल साहब लीडर सियासी जुनून रोजना जनाब शेख इस्माइल साहब जनाब इमाम माजिद साहब को गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। जनाब नहीं बोलना चाहिए, माजिद एम माजिद साहब, माजिद एम माजिद साहब। और कोई खुदकुशी और जनाब अशरफ साहब तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो अवार्ड दिया गया है, कारनामा अवार्ड जो दिया गया है, वो उनका हक था, वो देर से मिला और वाकई उनको इससे कहीं ज्यादा पैसा दूसरी यूनिवर्सिटी का
साहब के ज़्यादा हकदार है, इससे बड़े अवार्ड के लिए हकदार है। जनाब माजिद साहब से पहले मैं कह चुका हूँ, हम जनाब माजिद साहब नहीं कहेंगे, माजिद एम ए माजिद साहब कहेंगे, क्योंकि माजिद मौजिद करीम को कहते हैं, मौजिद करीम, माजिद के माने मौजिद करीम, माजिद इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मेंबर भी हैं आप, और इसी रास्ते पर आपको नेशनल अवार्ड भी मिल सकता है, यकीनन मिलेगा। जनाब आमिर अली साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया हूँ, शुक्रगुजार हूँ, और हमारे यमे माजिद साहब आपको मुखातिब करेंगे। जनाब यमे माजिद। एक यहाँ रियासत की का साहब
काफ़ी उस कमेटी में हैं। उस ओरिएंटेशन में मेरी ये ख्वाहिश रहेगी, मैं कमेटी वालों से कहूँगा कि उसमें ऐसे जनता पर लोग जो उर्दू के लिए मजनून है, उर्दू के मजनून है, जिन जुनून है, उनको भी होना चाहिए। तो मैं आपसे भी ताउन करूँगा, आपकी भी सोसाइटी है, आप भी काफ़ी काम करते हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे उर्दू के जो लोग आने वाले जो पे काम करते हैं वो भी हमारे साथ और यही बात यूनिट्स की हैसियत से जो भी अच्छे से काम करें। ये जो इमारत है, ये जो असासा है, ये पूरा आपका है। ये अक्सर ये तासुर रहता है कि ये दूसरे लोग ज़्यादा हमारे साथ है। यहाँ जो आगे बढ़कर परचम थामेगा उसी का है। आप एक तारीख यहाँ आप आज कम्युनिकेशन से भी यहाँ करवा सकते हैं। तमाम असातिज़ा आपको किसी देने की जरूरत है, आपको तमाम देगा कुछ है थोड़ा सा कम्युनिकेशन तौर पर, जैसा कि हमारे के साथ उनका कम्युनिकेशन बिल्कुल जुड़ा है। मैं उनसे चाहती हूँ कि आप ऐसा होता है कि मैं बुक कर लेता हूँ, लेकिन उन्होंने एक चिट्ठी एक ग्लास पर भी नहीं दिया कि मैं आदमी बना हूँ। अब वो मुझे आप कुछ नजर आ रहे साहब तो डर गए, लेकिन कुछ भी नहीं है क्योंकि आईटी होती है उनका ये उनका अपना अंदाज है। लेकिन फिर रही बात मेरे बारे में जज्बात बहस किया गया, मैं बहुत पीछे चले गया। साहब बता रहे थे कि माजी खान हुआ करता बड़े अजीब लगता था क्योंकि मैं आज भी मैं अपने नाम के साथ अपने काला के नाम से जब साहब इंतजार करते तभी उन्होंने फिर मेरा नाम भी जाने के बाद भी 5-6 साल रखा रहा, पहले भी 5-6 साल मानने नाम से लिखा करता था। तो वो एक अंदाज मतलब जो भी मिला मुझे मेरे साथियों से मिला, और मैं आज जब भी पोजिशन पे हूँ मैं समझता हूँ कि एक जर्नलिस्ट को करने के लिए जर्नलिस्ट के लिए उसकी फिगर कैसी होनी चाहिए, उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, उसमें कैसा जज्बा पैदा होना चाहिए। तो चूँकि मैं तो पीछे से आया हूँ, मुझे आपको बात नहीं की एजेंसी के रिपोर्ट के आज क्या एजेंसी की खबरों क्या है सोचने की बात, और यही लड़ाई हो रही है हुकूमत के साथ एजेंसियों के छोटे अखबार वालों के साथ आज इम्तियाज काम करता है, उनके साथ इम्तियाज बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से बदसूखता का शिकार है। ऐसे दो लोग हैं जिनको तो आप लाखों रुपये नवा सकते हैं, लाखों रुपये के बारे में आगे एक छोटा अपार्टमेंट ठीक है, छोटा बाजार का पता होगा, दूसरे अपार्टमेंट का उसने चोरी क्यों रखी होगी, लेकिन इसमें हुकूमत है तो कुछ भी हो रही हुकूमत समझना चाहिए। और उसके अलावा सहाबत हुआ देखिए पिछला रमजान में आपको कुछ अंदाजा होगा, मैं हमारे अंसारी साहब हमारे कम्युनिटी के अंसारी साहब से भी सुनूंगा कि उन्होंने आप देखिए कि हमको खबरों के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, खबरें लगाने के लिए सफा नहीं मिलता, 16 सफ़े 22 सफ़े तकरीबन पूरे बुक हो जाते हैं, आर्टिकल्स डिपार्टमेंट पूरा छा जाता है, नहीं हमारे पास जगह नहीं। एक खबर के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना गिरा गुजरता है जब एक रिपोर्टर खबर करके आता है और खबर नहीं चलती और उसके पैसे जो है मैनेजमेंट को दी जाती है, उसके पैसे ये जो लोग कहते हैं कि उर्दू अखबार की सरपरस्ती नहीं की जाए, उर्दू अखबार का लीडर पढ़ने वाला उसको सलाम करता हूँ मैं, उसकी खरीद को सलाम करता हूँ, उसकी वजह से अखबार का जन्म हो रहा है।
इंसान है, बस चीज चाहिए, लेकिन जब बिकाऊ जो चीज होती है वो बहुत खतरनाक है। आप ज़्यादा कीजिए, तरक्की कीजिए, लेकिन ये जो सौदेबाजी करते हैं खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो रहा है, ये बहुत हमारे लिए की बात है। नजर साहब क्योंकि ये बात उठाते रहे, लेकिन देखिए जैसा कहते हैं कि इनकी बात को लोग उनकी अहमियत हम उनकी बात को भी अहमियत देने की ये चीज़ हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जहाँ तक सवाल है, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आज जो सर्वाइवल है, चाहे वो रीजनल हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, वो प्रिंट मीडिया ही नहीं देते। जितने भी जो डायरेक्ट्स आ रहे हैं वो पूरे के पूरे इसी से ही दे रहे हैं, इसी का ही नेशनल मीडिया में नाम आपने बटन साहब आपने जो नाम लिए तो सारे के साथ प्रिंट मीडिया से निकले। आज मुझे हालांकि जब ये बात आई थी मैं जो बात करता हूँ सामने काटूँ मैं देखने वाला नहीं आप थोड़ा सा हमारा ऐसा होता था देखने वाला भी कहा कि नहीं आप थोड़ा शुरू कीजिए आप बात उसकी जो मुझे बात मुझे कई लोग सोसाइटी में तो लोगों को बताऊँ लोगों का मानना है बड़ा किसका मैं ऐसी बात है बड़ा किसका ऐसी बात है एजुकेशन में बिना दाखिल लैंग्वेज चाहे कोई हो उसमें देखिए जितने जाने वाले हैं कई ऐसे लोग जो उनको जाने और अंदर से मुझे मतलब समान नहीं है, लेकिन उनको भी एहसास होता है अरे आप बना चला और कई ऐसे काम मैं किसी काम के लिए जाता हूँ इतनी आसानी से वो गुडविल जो होता है उसके जरिए बात और बात भी करने के लिए और कि हमारी जो संगत चल रही है आप आउटसाइड का जाना कि मैंने ही हमारे सोसाइटी के डायरेक्टर से सेपरेट किया है शायद हो सकता है इसके लिए करना हो जाए। बात दरअसल ये है कि पिछला साल आपके इसी साल को लिया 6 घंटे हमारी कहा कि दिन को अलर्ट हुई रात को अलर्ट हुई लेकिन आपको पोजिशन नहीं मिल पाया लेकिन ऐसा कीजिए कर दीजिए उसके बदले में हम अभी आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं और आप जो डिपॉजिट करेंगे मैं बात आई गई होगी उसके बाद फिर काम होगी क्या हुआ हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अर्जी डाली कि द्वारा निकाल दे रहे हैं जो जमीन को अलर्ट करती हो वो वापस आपका अलग है अलर्ट हो चुकी है आपका ये है कि एहसास के तौर पर किया जाए या चैरिटी के तौर पर किया जाए ये दो सवाल है जो भी हमारा अब उत्तर प्रदेश में वैसा मामला है तो फिर आपकी बात ये जो है उसकी वजह से आप बात करें कि आप जल्दी हो जाए और उसमें तकरीबन 1000 निकलों में मुझे खुशी है 200 उर्दू वाला कीमत ले चुकी कीमत लेने के बाद पोजिशन नहीं मिला कीमत ले चुके हैं जो कीमत बात की गई थी ज़्यादा करने के बाद पैसे डिपॉजिट कर ये एक मतलब है एहसास किए गए व्यवस्था नहीं चल पा रही छोटा छोटा सा उसके लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारी है वो सीएम साहब के साथ या उधर फ्लोरिडा में उसके साथ हमारा कोई ऐसा बड़ा रहा और चाहे सीएम साहब ऐसे हो गए कि पहले तो नहीं डिवीजन पे हुआ करते थे वो समाधियों के लिए फिटनेस के लिए दूसरों के लिए बहुत तैयार होते थे और कैबिनेट की जो बिल्डिंग हो चुकी है तो सीएम साहब कुछ बदले लेते हैं रिव्यू मीटिंग करते हैं कैबिनेट मीटिंग करते हैं बुलंद हो पा रहा है वो हमने हमेशा याद करेंगे और आपने जो कार्य हमने की जो इज्जत दी है मैं इसके लिए तमाम साथियों का खासकर साहब का जो हमेशा जो है उनकी जिंदगी ऐसी मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी बदली PhD का एक चीज़ मैं ठीक कह रहा हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जो लोगों के लिए किसी न किसी बनाते हैं तो मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ मेरे लिए आपने